हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 20 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है भूगोल का। इसमें आज हम करेंगे लैंड, सॉइल एंड वेजिटेशन रिसोर्सेज इन इंडिया, यानी भारत में भूमि, मृदा और वनस्पति के विषय में जो है यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लैंड, सॉइल और वेजिटेशन का जो है भारत में के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान है। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, अगर उनके सिलेबस में ये टॉपिक है तो ये सिलेबस उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये अमृत तुल्य होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, और ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए, एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next important topic arrive here, soil erosion. Soil erosion is the most important here. Soil erosion is described as the carrying away of soil. It is the theft of the soil by natural element like a water, wind, glacier and wave. There is an important here, natural element like a water, winds and glacier and wave. Gravity tends to be move soil down slope either very slow as in a soil creeps are very rapidly as a landslides. The present shape of the land has been covered through there are thousands of years. You know that there is important, there is a present shape of the land has been to covered through their thousands of years. Soil erosion has become now one of the major environmental problems and a serious constraint for agriculture production. There are many physical and social factors which determine the extent and severity of soil erosion here. The principal of physical factors are erosivity of rainfall, irregularity of soil, severity of periodical flood, length and steepness of slope. The important social factors are deforestation and overgrazing, natures of the land use and the method of cultivation here. The ravenous is a glaciers and landslide are most serious and highly visible form of the land erosion here. On the other hand, seed erosion caused by the rain and erosion due to the winds are listed as visible but equally serious as the two take a heavier toll of our precursors top of soil. Soil erosion is a ravenous and glaciers is the spread in India. It has been estimated that 3.67 million hectares of the soil surface of damage. There are four major areas of rains and the glaciers in India. There are the Yamuna, Chambal rains zones, Gujarat rains zone, there are Punjab, Shivalik foothills zone and the Chota Nagpur zone. There is the other area of substantially is the raven as the erosion is the Manadis Valley. Manadis Valley is the upper son of valley, upper Narmada and Tapti Valley, Shivalik and Bhavar tracts of the western Himalaya foothill and edges of Ganga Khadar is the western Uttar Pradesh. The relatives is a less effective area are west of Deccan, south of Godavari. There is a Ganga Brahmaputra plain. The eastern of Varanasi, Kutch and the western Rajasthan and soil erosion is spread over to the sloping deforested terrain of
on traces as the uplands and peninsular region as Satluj, Ganga plain and coastal plain, and Western Ghat and Northern Eastern Hill. That is important. The occurrence of is a landslide is a common in the earthquake. Sensitive belt is a particularly the Shivaliks. Heavy rainfall and cutting of slope of road, building and mining of active treasure of landslide. In the last 50 years, the Rajasthan desert has encouraged upon to the 13,000 hectares of land is Rajasthan. There is an important here 13,000 hectares of land is Rajasthan, and Gujarat, Haryana and Uttar Pradesh is a glacial erosion is limited to high is a Himalayas, and sea erosion is confined to the coastal as area only. The soil erosion and soil exhibitions is due to be loss of soil nutrients and pose of serious threat to be over referred to the increasing the productivity of soil faster than to population of growth. यहाँ पर देखा जाए तो मृदा अपरदन देखिए काफ़ी जो है किसी भी देश के लिए मृदा अपरदन होना कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण रहती है, और भारत में भी जितने सारे नदी हैं और मृदा अपरदन होना स्वाभाविक बना देती है। तभी भारत में बहुत से लैंडस्लाइड भी देखने को मिलता है और कई जगह पर जो है मिट्टी का हर्ष होना स्वाभाविक बनाता है। तो मृदा अपरदन जो है किसी भी देश के लिए सही नहीं है और मृदा अपरदन से बहुत ही नुकसान होती है। तो ये महत्वपूर्ण बात आता है। कहते हैं मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा हटाया जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। यानी मिट्टी जहाँ पर बनी हुई है वहाँ पर किसी कारणों के द्वारा वहाँ से हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। और यह प्राकृतिक कारक जैसे जल, पवन, हिमानी और जल की लहरें द्वारा एक प्रकार की मृदा की चोरी है। यानी देखा जाए तो मृदा की चोरी होता है, तीफ होती है। यानी जल, पवन और हिमानी जल की लहरों द्वारा एक प्रकार की जो है चोरी होती है, जो कि चोरी कौन करता है? जल कर सकता है, पवन कर सकता है, हिमानी कर सकता है, और जल की लहरें जो करती है मिट्टी को चोरी कर जाती है उस जगह से। कहते गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर छेन गतिमान होती ही रहती है। इसे मृदा संपर्ण कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसे मृदा संपन्न कहते हैं, जिसे मृदा संपन्न के नाम जाना जाता है। अथवा यह जो है भू संकलन द्वारा तीव्र गति से नीचे आ जाती है। यानी देखा जाए तो ये तीव्र जो है गति से नीचे आ जाती है और भूमि का जो है वर्तमान स्वरूप हजारों लाखों वर्ष की काट छांट द्वारा ये बनती है। यानी हजारों वर्ष जो है काट छांट के कारण जो है ऐसी दशा बनती है। मृदा अपरदन आज की पर्यावरणीय समस्याओं में से एक समस्या है और यह जो है कृषि के उत्पादन में गंभीर रुकावट डालती है। इसलिए बहुत ही विकट समस्याएं हैं। मृदा अपरदन की जो है विकरालता एवं उसके फैलाव को कई भौतिक और सामाजिक कारक निर्धारित करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अपरदन की विकरालता और फैलाव जो है भौतिक और सामाजिक कारकों को बहुत काफ़ी प्रभावित करते हैं। कहते हैं प्रमुख भौतिक कारक है वर्षा की अपरदनकारी शक्ति, मृदा की अपनी कटाव क्षमता और आवर्तीय बाढ़ों की तीव्रता, ढलान की लंबाई और तीव्रता, ये सभी बातों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपने स्थान पे कि प्रमुख भौतिक कारक जिसमें वर्षा की अपरदनकारी शक्ति भी आ जाती है, मृदा की अपनी कटाव क्षमता भी आती है और अपरिवर्ती बाढ़ों की तीव्रता भी नज़र आती है, और ढलान की लंबाई और तीव्रता तो इसमें आती ही आती है। प्रमुख भौतिक कारक जो इसमें देखे जाए तो कहते हैं वर्षा की अपरदनकारी शक्ति, मृदा की अपनी कटाव क्षमता और आवर्ती बाढ़ों की तीव्रता, ढलान की लंबाई और तीव्रता नज़र आती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि प्रमुख भौतिक कारक के रूप में देखा जाए तो वर्षा की अपरदनकारी शक्ति आती है, मृदा की अपनी कटाव क्षमता, आवर्ती बाढ़ों की तीव्रता, ढलान की लंबाई और तीव्रता। कहते प्रमुख सामाजिक कारक के अंतर्गत देखें तो वनों की कटाई आ जाती है, अति चराई, भूमि उपयोग की प्राकृतिक और खेती करने की विविधता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रमुख जो है सामाजिक कारक भी आते हैं और भौतिक कारक भी आते हैं। भौतिक कारक भी आप समझ गए होंगे, सामाजिक कारक भी इसी के अंतर्गत आता है कि वनों की जो है धनाधन कटाई होती चली जा रही है, पशुओं को जो है अधिक चराई किया जा रहा है, भूमि उपयोग की प्राकृतिक और खेती करने की विविधताओं को भी बदल दिया है।
कहते हैं भूमि अपरदन के गंभीर एवं अत्यंत स्पष्ट रूप जो है खंड अनावलिकाओं और भूख संकलन भी रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भूमि अपरदन के जो है गंभीर एवं अत्यंत स्पष्ट रूप जो है खंड अवनालिकाओं और भू जो है खलन भी है। और इसके दूसरी ओर वर्षा द्वारा किया गया परत अपरदन और पवन द्वारा किया गया अपरदन यद्यपि स्पष्ट रूप से बहुत ही कम दिखाई देते हैं, परंतु यह भी इतने ही गंभीर है क्योंकि इसके द्वारा भारी मात्रा में मृदा की बहुमूल्य ऊपरी परत जो होती है नष्ट हो जाती है। भारत में जो है खंडहरों और अवनालिकाओं द्वारा हुए मृदा के अपरदन से जो देखा जाए तो 36.7 लाख हेक्टेयर भूमि को नुकसान हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहता है कि यहाँ पर सबसे अधिक देखा जाए तो मृदा का अपरदन को ही नज़र आ रहा है कि 36.7 लाख हेक्टेयर जो है भूमि को नुकसान हुआ है। और भारत में खंडहरों और अवनालिकाओं के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। चलिए देखते हैं 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखा जाए तो पहला तो है यमुना चंबल खंडहर क्षेत्र है, गुजरात खंडहर क्षेत्र आता है, पंजाब शिवालिक गिरिपाद क्षेत्र और छोटा नागपुर क्षेत्र। तो ये जो है प्रमुख है यहाँ पर भारत में खंडहर और अवनालिकाओं के 4 प्रमुख क्षेत्र जो है आपके समक्ष है कि यमुना चंबल खंडहर क्षेत्र है, गुजरात खंडहर क्षेत्र है, पंजाब शिवालिक जो है गिरिपाद क्षेत्र है और छोटा नागपुर क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त जो है खंडहर अपरदन के कुछ ठोस उदाहरण महानदी घाटी, ऊपरी जो है सोन घाटी, ऊपरी नर्मदा और ताप्ती घाटियाँ, शिवालिक तथा पश्चिमी हिमालय के जो है गिरिपाद वाला भाबर भूमि और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा खादर के सीमांत में मिलते हैं। और जो है खंडहर और अवनालिका अपरदन से जो है सबसे कम प्रभावित क्षेत्र भी है। गोदावरी के दक्षिण में जो है पूर्व दक्कन क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान और कच्छ और पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्षेत्र है कि दक्कन क्षेत्र जो है गंगा ब्रह्मपुत्र और के मैदान और कच्छ और पश्चिमी राजस्थान। कहते हैं परत अपरदन के प्रमुख क्षेत्र जो है यहाँ ढालू भूमि, अपर प्रायद्वीपीय प्रदेश की बिना सीढ़ी वाला उच्च भूमियाँ जो है सतलुज, गंगा का मैदान, तटीय मैदान, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ जो है इसके विशेष रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं भू संकलन सामान्यतः भूकंप वाले क्षेत्र विशेषता शिवालिक के भागों में होते ही रहते हैं क्योंकि ये जो है शिवालिक के क्षेत्र में भू संकलन होना स्वाभाविक बात रहता है। भारी वर्षा और सड़कों तथा इमारतों के बनने के लिए ढलानों के काटने एवं खनन क्रियाओं के कारण भी भू संकलन होते ही रहते हैं। कहते हैं इंसान ने बड़े बड़े सड़कें का निर्माण किया है, इमारतों का निर्माण किया है, जिसके वजह से जो है भू संकलन होना एक आम बात बन गई है। गत 50 वर्षों में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेशों में मरुस्थल का अतिक्रमण भी हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाती है यहाँ पर मृदा अपरदन के अंतर्गत कि इससे जो है 13,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। हिमानी द्वारा अपरदन हिमालय के उच्च भागों में और समुद्री लहरों द्वारा जो है अपरदन तटीय भागों में सीमित ही है। मृदा अपरदन और पोषक तत्वों की समाप्त हो जाने के कारण मृदा का समापन दोनों ही गंभीर बाधाओं के रूप में देखा जा सकता है। तो मृदा अपरदन और पोषक तत्वों के समाप्त हो जाने के कारण मृदा अपरदन दोनों ही गंभीर बाधाएं हैं। मृदा की जो है उत्पादकता बढ़ाने के मार्ग में ये दोनों ही गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या के वृद्धि की तुलना में यह ज़्यादा तेज़ी से बढ़ भी रही है। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि की तुलना में जो है मृदा अपरदन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि किसी की देश के लिए जो है अच्छी खबर नहीं है। कहते हैं ये काफ़ी मृदा अपरदन जो है कृषि योग्य भूमि को भी तहस नहस कर देती है। So our next topic is important here, soil conservation. There is a most important here, soil conservation here. The method by which is a soil is prevented from to begin is irradiated to the constitute of soil conservation here. If the soil is wasted or blown away, it is not easy to replace it, and therefore the most important step of soil conservation is to hold the soil in place. This is possible by improved to the agriculture practice in a different regions here. The contours is a plunging and tracing are generally is a practiced on the hill slope. They are the simplest is a conservation of method. The rows of trees are shattered, belt are planted to protect the field in a desert region from the winds erosions here. Afforestation of the catchment is areas
and the slope in the Himalayas, the upper, the Madars Valley in Jharkhand and Nilgiri Hill in the south has been implemented. It reduces the surface runoff of the wind and there is a soil. Revenues are noted from there is a enormous size and depth with the vertically sides. The central Soil Conservation Board has been established of three resource stations. The three resource station is important here. Kota in Rajasthan, Agra in Uttar Pradesh, and Vashad in Gujarat to be suggest method of reclamation of ravens lands. Overgrazing by the sheep, goat, and other livestock has been to partly responsible for a soil erosion. Evasion due to this is a factor has been reported from Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Rajasthan and Karnataka. Soil erosion can be prevented by application of manure and fertilizers here. The next important point in the box, there is the most important notable here point, note your notebook. The first point here, the 6 major types of soil found in the India available black, red, laterals, and desert and mountain soil. There is the most important 6 major types of soil found in the India here. And the next here, both physical and social factor causing a soil erosion. Both physical and social factor causing a soil erosion. The physical factors are erodibility of rainfall, erodibility of soil, severity of periodical flood, and length and steepness of slope. The soil factors are deforestation, overgrazing, and nature of land use and method of cultivation here. And the next point also important here, major form of soil erosion are ravenance, gullies, landslide, and sheet erosion here. The next year, contours is a plugging, tracing, planting of shelter and belt is a afforestation and checking of overgrazing and application of manure and fertilizer are the method of soil conservation here. There is the most important soil conservation in the box of point here. यहाँ पर अगर हम बात करें मृदा संरक्षण की, देखिए मृदा संरक्षण तो कई मायने में करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और मृदा संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका यही है प्लांटेशन यानी पेड़ पौधे लगाना। कहते हैं पेड़ पौधे जितने कट रहे हैं उतना ही मृदा अपरदन के कारण भी बन रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। कहते हैं मृदा अपरदन जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं रीज़न यही आता है कि इसका जो है इंसान स्वयं ही दोषी है, क्योंकि इंसानों ने मृदा अपरदन का कारण इसलिए बना दिया है क्योंकि उन्होंने पेड़ पौधों को जो है बहुत ही नम्रता पूर्वक जो है काट रहे हैं और जिसके वजह से मिट्टी की जो पकड़ की क्षमता थी तो वो ख़त्म हो जा रही है, जिसके कारण थोड़ा से भी रेन होने के कारण जो है मृदा अपरदन होना स्वाभाविक बना देता है। तो जनरली सी बात देखा जाए तो अगर अधिक पेड़ पौधे लगाएं तो मृदा अपरदन को जो है रोका जा सकता है। मृदा के संरक्षण में वो सब विधियां आती है जिनके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यदि मृदा बह गई या उड़ गई तो उसे जो है पुनः स्थापित करना आसान नहीं होता है और इसे कारण जो है देखिए कुछ कारण जो है प्राकृतिक भी है तो बहुत से कारण जो है मानव निर्मित कारक भी होते हैं। इसलिए मृदा संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि मृदा अपने स्थान पर सुरक्षित बने रहे और इसके लिए जो है मानव को बहुत ही जो है कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए विभिन्न प्रदेशों में कृषि पद्धति में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। पहाड़ी ढलानों पर जो है समक्ष रेखिक जुताई और जो है सीढ़ीदार खेती की जाने की आवश्यकता है। मृदा संरक्षण की ये सबसे बड़ी आसान विधियाँ हैं। कहते हैं वृक्षों को जो है कतार या रक्षक मखला बनाकर मरुस्थलीय प्रदेशों में जो है पवन अपरदन से खेती की रक्षा की जा सकती है। तो वृक्षों की कतार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण संरक्षण के रूप में देखा जा सकता है। हिमालय के ढलानों और अववाद क्षेत्रों झारखंड में ऊपरी दामोदर घाटी और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी पर जो है वनरोपण किया गया है और इसके द्वारा धरातलीय जल के तेज बहाव को कम भी किया गया है, जिससे मृदा अपरदन ही स्थान पर बंधी रहती है। तो देखिए बहुत से उपाय अपनाए गए हैं बट ये कारगर सिद्ध नहीं हुई है। खंडर अपने विशाल आकार, गहराई और जो है खड़े ढलानों के लिए जाने जाते हैं। ऐसी खाद भूमि का जो उद्धार करने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने 3 अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी किया है। तो कहते हैं सरकार के द्वारा हर एक कदम उठाई गई है बट ये सशक्त नहीं हुई है। अगर हम ये 3 अनुसंधान केंद्र की बात करें तो देखिए राजस्थान में कोटा है
और उत्तर प्रदेश में आगरा में है और गुजरात में जो है वलसाड़ के नज़दीक है। तो ये तीनों केंद्र जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है जो है अपर्दन के रिगार्डिंग। इन केंद्रों का जो है मेन दायित्व जो यही रहती है कि इन केंद्रों का है कि वे खंडर भूमि के उद्धार के लिए क्षेत्र अनुसार अनुकूल विधियां बताएं। यानी ये इन केंद्रों का यही कार्य है कि वो अपनी दायित्व यही निभाते हैं कि जो भी अपर्दन का कारण बनता है उसको जो है उन परिस्थितियों को बदलना है। कहते हैं भेड़ बकरी और अन्य पशुओं द्वारा अतिचराई भी आशंकित रूप से भूमि अपर्दन के लिए उत्तरदायी होते हैं और इस कारक द्वारा जो है अपर्दन जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक से ज़्यादा होता है। मृदा का जो है समापन खाद और उर्वरकों की मदद से भी रोका जा सकता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण और कारगर यहाँ पर उपाय साबित हो सकता है मृदा अपर्दन के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है एक बॉक्स के रूप में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को उजागर करता है, जिसको आपको अपने कॉपी में नोट भी कर लेना चाहिए। तो देखिए ये बात काफ़ी गहराई वाली बातें हैं और बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण वाली भी रखती है। कहते हैं मृदा अपर्दन को भौतिक एवं सामाजिक कारक निर्धारित करते हैं। जैसे भौतिक कारक के रूप में देखा जाए तो वर्षा की अपर्दनकारी शक्ति, मृदा की अपनी कटाव क्षमता, अवर्ती बाढ़ों की तीव्रता और ढलान की लंबाई एवं तीव्रता, और सामाजिक कारक जो होते हैं वनों की कटाई, अतिचर भूमि उपयोग की प्राकृतिक और खेती करने की विधि। तो ये जो दोनों मेथड बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो भौतिक कारक है और एक जो है सामाजिक कारक के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं मृदा अपर्दन के प्रमुख रूप में जो है खंडर, अवनालिकाएं, भूसंकलन एवं परत अपर्दन आती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बातें रखती है, ठीक है। जहाँ पर हमने मिट्टी के प्रकारों के विषय में भी बहुत काफ़ी चर्चा किया। कहते हैं मृदा संरक्षण की विधियों के अंतर्गत देखा जाए तो समुच्चय रेखित जुताई, सीढ़ीदार खेती, वृक्षों की कतार एवं रक्षक मुखला बनाना, वन रोपण, अतिचराई को रोकना एवं खादों और उर्वरक का प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रखता है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है हमने बातों पर चर्चा किया, ठीक है। बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को जो है डिस्कस किया। तो ये मृदा अपर्दन के हम हर एक पहलू के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया और जानने की कोशिश किया कि इसकी क्या कारण हो सकते हैं और इनके कारणों और इनको संरक्षण करने की हर एक विधि पे जो है हमने विस्तार पूर्वक जाना और समझा। कहते हैं ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लोगों के लिए रहेगा और हर एक क्लास के बच्चों के लिए रहेगा, क्योंकि इसमें हर एक बात को जो है विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश किया गया है। अगर आपको ये बात सारे समझ में आते हैं तो ज़रूर जो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर को हेल्प करना चाहते हैं तो जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प जरूर कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ समय के लिए लगा देना है। इतना सा कार्य आप जरूर कीजिएगा, इससे जो होगा दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुँच जाएगा और वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकेंगे। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर अच्छा लगता है, बाद में कोई अगर टॉपिक आप रिसर्च करना चाहोगे तो शायद आपको दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र न आए। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करके रख लेते हो तो जब भी चाहो इसके होम पेज पे आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ में जो है आपको जो है हर समय कभी भी आप इसके होम पेज पे जा सकते हो, वहाँ पर सभी वीडियो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आप क्लास के अंतर्गत देखना चाहते हो वीडियो, चाहे सिलेबस के अंतर्गत, तो उसका भी प्रावधान है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो जो है सुलभतापूर्वक बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा।